ma'am. Okay. Since everyone is here, तो फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं. First of all, good evening, everyone. I hope everyone here is doing well. Thank you so much for today and for thank you so much for everyone. सबसे पहले to start off, I will briefly introduce myself and our speaker, and I will also give you guys a quick of today's session कि हम क्या discuss करने वाले हैं, हम क्या बात करने वाले हैं. So my name is Kashmala Khan. I am a psychology undergraduate, a freelancer, and currently an intern at Project Keen. We have with us Ms. Afra Arshid. She's a certified clinical psychologist, founder and CEO of Team Therapy. So काफी लोग यहाँ पे familiar होंगे अफरा से. They have attended all the sessions. So you guys know how she brings a wealth of knowledge and experience in helping individuals and strengthen their emotional and mental health. So she's like a very good speaker. I've been taking her sessions. I really like the way she delivers everything. So this is like a very good opportunity for me to work with her. So I'm so happy today for this session. So, coming towards our session title is Becoming Your Own Safe Space, Building Self-Worth and Emotional Resilience. So, इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम अपने आप के साथ एक नर्चरिंग और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करें, अपनी सेल्फ वर्थ को डीपली समझें एंड उसकी कदर करना सीखें. एंड इमोशनल रेजिलियंस यानी कि चैलेंजेस वी हैव इन आवर लाइफ, उसको किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह हैंडल करें और मतलब उसको हैंडल करने की बेसिकली एबिलिटी को स्ट्रेंथन करें. सो वी विल टॉक अबाउट बिकमिंग आवर ओन सेफ स्पेस बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के और अपने इमोशंस को बेटर रेगुलेट करके एक स्ट्रॉन्गर, बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ बनाने के लिए. सो नाउ आई विल ask Miss Afra to continue with our session and enlighten us with her knowledge. Hello and assalamu alaikum everyone. I hope that you can hear me. Welcome to this space, like Kamala has said. This is basically a safe space, and this space is organized for you. So this is a space where you don't have to perform, you don't have to prove anything. You just have to listen and maybe reflect at your own self, own thoughts, own feelings. First of all, I would like to thank Kashmala and the Project Yakeen for giving me this wonderful opportunity. And I absolutely love the topic, right? Becoming your own safe space, giving a chance to talk about your emotional self. I think this is something I personally liked, and I'm looking forward to this topic as well. I'll just share my screen with you. All right. So when I got to know about this topic, the first thought that came into my mind that why are we even talking about this? And I'm sure most of you would also be wondering, कि आज हम क्या बात करने लगे हैं, या why are we talking about this topic? And we are highlighting or targeting women and students over here because I believe that these two categories of people are walking around every day with unseen emotional loads. Okay? For women, they are told to be everything, strong but soft at the same time, capable but not so intimidating. Okay? They are told to be independent but not so accommodating. Okay? And for students, especially in today's world, the pressure to be smart, to be successful, to be social, to be almost everything all the time. So that can be exhausting as well, right? So today, for 1 hour of this session, I would request all of you to just drop all of that just for a moment, forget about all this pressure, all this responsibility, and just earn some rest for yourself, some peace for yourself,
And that's exactly what becoming your own safe space is about. Murtaza has raised his hand. Yes, Murtaza, do you want to say something? Murtaza, आप कुछ कहना चाहते हैं? You can unmute yourself or maybe just write down in the नहीं chat मैम, मैं box. कुछ नहीं कहना चाहता. जी, sorry, I can't hear you. नेटवर्क प्रॉब्लम है. मैं कह रहा Ma'am, हूँ actually, he's मैम saying that नेटवर्क प्रॉब्लम there आ is रहा है. network problem in that side. I can't hear Murtaza properly if he's saying something. Ma'am, he is saying that there is network issue in his side. So maybe he just raised a hand, and due to network issue, he is not able to unraise it. All right, no problem, no problem. All right. So let's just begin. All right, before we talk about any other thing, let's talk about what comes to your mind when you hear the phrase or the word safe space. What is safe space for you guys? First, I would like to know about that. Jitna Where we feel comfortable. to feel comfortable, all right, where we can express, excellent, where no one is judging us, yes, where you can be yourself, good one, I like that one. You feel secure, you feel ourselves, where you can share the stuff, where you don't have to pretend, where you can openly talk, exactly, where there's self growth, excellent, where we can act the way we want to act, yes, where we can be ourselves. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट सेफ स्पेस का जानने की जो जरूरी है वो ये है कि we cannot expect other people to create that safe space for us until and unless we create that for ourselves. There are a lot of people who do not feel comfortable in their own space, who cannot be themselves in their own space. तो ये सबसे पहले, before expecting someone else to provide that safe space for you, it's really important where we can be ourselves without judging ourselves. We avoid our pain. Excellent point, Hansa. That's exactly why we cannot create safe space for ourselves, because we avoid our pain. We avoid ourselves. There's a lot of people who have issues, who complains about they do not like it when they're alone, because then they have to face a lot of things. ठीक है? और what does that mean? That means आपने अपने लिए safe space कभी create ही नहीं किया. There is no safe space for you. And we have to learn how to basically accept our emotions and then be present in the safe space. और ये आई बिलीव इट्स अ वेरी ये बहुत बड़ा एक टैलेंट होता है जो हमें सीखने की जरूरत है कि हाउ कैन वी क्रिएट दैट सेफ स्पेस फॉर आवरसेल्फ. All right, thank you everyone. Wonderful answers. I really like how you have basically concluded. You stop judging yourself, you be yourself, you listen to yourself with compassion. Safe space में हम अपना आप को सुनते भी हैं. Safe space is where we can reflect ourselves. Or when you are in the safe space, if there's any negative emotion that comes up, negative thought, negative feelings that comes up, you accept that, you acknowledge that. So I would also like all of you to please grab some notebook या अपने ऐप में कोई खोल के रखें, not for any homework, not for any task, but during this session, if any one of you experience any feeling or any emotion that you would like to express with us, so we can, you can use this safe space. ये आप लोगों के लिए opportunity है, तो I would appreciate if you could just keep writing down any thoughts, any feelings that shows up during the session, and then you can share it with me if you are comfortable. किसी ने कुछ कहा हो, मैं पहले वो पढ़ लूं. Safe space mean where we can easily share our feelings with ourselves and know well about ourselves. I feel safe. I feel myself
in safe when I'm trying to confess something to Allah Ta'ala. Exactly, बिल्कुल. I believe कि वो भी, you know, when we talk about safe space, it's really important to acknowledge this thing कि जब हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं या हम जब दुआएं मांग रहे होते हैं, तो वो बेसिकली एक सेफ स्पेस होता है आपके और आपके खुदा के बीच में, जहाँ पे यू आर एक्चुअली नॉट जजिंग योर सेल्फ एंड यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. उसी तरह से हमें चाहिए कि हम वो सेफ स्पेस जब हम अकेले हों, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हो, व्हेन वी आर ऑल अलोन, तब भी यू शुड आल्सो फील सेफ. ऑलराइट. सॉरी मैम फॉर इंटरप्टिंग यू. एक्चुअली कोई किसी का माइक ऑन है और कुछ भी आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही. काइंडली आप बोल दें कि वो माइक ऑफ कर दें. अच्छा, आई थिंक मैं देख लेती हूँ किसका माइक कौन है. मुर्तजा, द व्हाट्सएप ग्रुप इज ओपन. आप उस पर कुछ मैसेज करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. टू मच बैकग्राउंड नॉइज. अच्छा, मैंने वैसे देख लिया है. शी हैज म्यूटेड हरसेल्फ, बट अगर दोबारा कुछ इस तरह का हुआ तो जस्ट लेट मी नो. ऑलराइट. Alright, let's talk about now. We are going to focus on those things or those people जिनको basically अपना safe space बनाने में problem feel होती है, या जो अपने safe space में जो लोग comfortable नहीं है, ये उनके लिए special है. How can you make your safe space? Acha, I would like to ask you guys first. Okay, it's very hot. I would like to ask you guys. I would like to wait. All right, I was asking that how can we create our inner safe space. अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने सेफ स्पेस बना ली है अपनी, क्या एडवाइस वो देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके पास सेफ स्पेस नहीं है? I would like to repeat the question. जिन लोगों के पास सेफ स्पेस है, जिन्होंने अपनी सेफ स्पेस बना ली है, who are comfortable in their own zone, what advice would you want to give to those people who are not comfortable in their safe space, या जिनको safe space नहीं बनानी आती? And I do see some answers. थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन कम कर दें. Allow yourself to be human. Just talk to yourself about everything once a day, maybe at night, and do the thing you love at least once a week. Excellent advice, Fatma. I really like your advice. To accept their selves however they are. Learn to say no. Very good point. Boundaries बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है. Give time to yourself. Never avoid or suppress your feelings. Let yourself feel and talk to yourself. Talk to your own when you feel there is no one for you. Accept your emotions. Very true. Excellent. Totally love all the advices. So basically, कैसे आपने अपने आप की सेफ स्पेस बनानी है? You have to allow yourself to feel safe inside of who you are. आप अपने आप को allow ही नहीं करते हैं. Validate yourself. It's okay to feel like this. ठीक है? I belong here, even if I'm messy, even if I'm very emotional, even if I'm unsure. I belong here. I am proud of myself, whatever I have done. I believe in myself.
All right. Healing is within yourself. Don't be fake for yourself. I think you should be clear to yourself in the first place. Very good point. Absolutely loving it. बहुत मुझे बड़े पॉजिटिव आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. Let me just take a picture as well of all these responses. एक second. जो मेरा I really love it when people are interacting and they are helping me out to keep the session very engaging and talkative. अच्छा, second point is कि जो आप लोगों ने कह दी है, आप हमने जर्नलिंग करनी है, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करें, practice self-soothing with any soft texture, any calming scents, any colors, because वो भी बहुत help करते हैं, especially for those women who are constantly doing something, जिनके पास टाइम ही नहीं होता, वो उठते साथ ही अपनी ड्यूटीज पे लग जाती हैं, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, जॉब पे जाना है, पढ़ाई करनी है, तैयार होना है, हर चीज दे हैव टू लुक एट एवरीथिंग. तो कभी कभार जस्ट सिट एंड जस्ट फील द ब्लैंकेट. ठीक है, कैंडल जला ली, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगनेंस को फील करें, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प यू टू कंफर्ट योर नर्वस सिस्टम. ये एक्चुअली में हेल्प करती है. ठीक है, देन रियलाइज दिस थिंग दैट यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आई कैन नॉट कंट्रोल, मुझे रोना बहुत आता है, नहीं मेरे से कंट्रोल होता, गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. इस चीज को रियलाइज करें और एक्सेप्ट करें दैट आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस. अच्छा, कंट्रोलिंग का मतलब सप्रेसिंग नहीं है. ठीक है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ. कंट्रोलिंग का मतलब है कि यू रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस रादर देन रिएक्टिंग टू योर इमोशंस. ठीक है, इट्स ओके टू फील whatever you are feeling right now, but at least feel तो करें. हम फील ही नहीं करते हैं. We get so scared that we don't want to feel any of our emotion and we try to run away from it. अंसा ने कहा है कि मैम आई फील नम. अच्छा, अब नमनेस की क्या वजह होती है कि आई एम श्योर आपका बड़ा लंबा जर्नी रही होगी या लंबा प्रोसेस रहा होगा ऑफ सप्रेसिंग योर इमोशंस. आपने इतने इमोशंस सप्रेस कर लिए हैं कि नाउ इट्स टाइम कि कुछ इमोशन आता भी है ना तो वो फील नहीं हो पाता. ठीक है, अगर आप एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, टेल योरसेल्फ दैट आई चूज टू पॉज, आई चूज टू ब्रीथ. ठीक है, हम क्या करते हैं, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, अजीब सी कैफियत हो रही है, वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दीज इमोशंस. ठीक है, हम भाग रहे होते हैं इन इमोशंस के साथ. Sometimes maybe it's because of suppression of emotions. Exactly, emotional burst होता है जी. Strengthen your faith and allow yourself to talk about how you feel. ठीक है, allow yourself to talk about how you feel. हम allow ही नहीं कर रहे होते अपने आप को. And during this phase, if you have any sort of hobbies that you like to do, any activities, you like listening to music, but आपने note किया कि काफी टाइम से मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ. ठीक है, सो दैट ऑल्सो काउंट्स. गेट बैक टू योर फेवरेट हॉबी. ठीक है, कोई न्यू आइडियाज आपके पास आ सकते हैं विद टाइम, लेकिन हम क्या करते हैं, वी टेंड टू ड्वेल आवरसेल्फ इनटू दिस नेगेटिविटी. हम इस चीज से बाहर नहीं आते. हमें पता होता है व्हाट आर द वेज दैट कैन हेल्प अस, बट वी चूज नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. ऑलराइट, चलो लेट्स जस्ट मूव ऑन. अच्छा, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन मेकिंग दीज स्लाइड्स, तो मैंने नोट किया कि जहाँ पे हम बात करते हैं सेफ स्पेस की, वहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव का भी कॉन्सेप्ट काफी दफा रिपीट हो रहा था. तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट एज वेल. सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है जी? सबसे पहले इट्स अ क्वाइट वॉइस दैट यू हेयर दैट आई एम ओके राइट नाउ. I am allowed to be where I am in this moment. And self-acceptance is not at all about loving yourself 24/7. ठीक है, it's not about कि आप हर वक्त जो है ना, you are like constantly telling me कि मैं तो हमेशा हर वक्त ही अपने आप से प्यार करता हूँ. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. It's all about telling yourself कि I can be better, I can achieve what I want to achieve.
and I will be better. ठीक है? And I don't know if you guys can tell this or not, but क्या ऐसा कभी हुआ है कि जो जब आपने कुछ भी अपने बारे में एक्सेप्ट किया है, कोई नई चीज आपने अपने बारे में एक्सेप्ट की है, चाहे वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो एक्सेप्ट करना, did anyone ever experience this thing कि obviously you know it's always a learning phase, लाइफ में आप हर चीज सीख रहे होते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि when you explore something new about yourself and that was hard to accept? It wasn't easy, but still you did it. It did. All right. There's always room for improvement. Definitely. Regrets accept करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल तो. अच्छा, रिग्रेट भी एक ऐसी चीज है, जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. और रिग्रेट जो है बड़ी बुरी चीज है वैसे रिग्रेट करना कुछ भी, बिकॉज रिग्रेट आपको ये चीज सिखाती है कि काश मैं उसको बदल देता, काश मैं ऐसा ना करता, काश ऐसा हो जाता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. We cannot change our past or present, ठीक है, sorry, we cannot change our past or future, but we can always work on our present. आज आप क्या कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, जो पास्ट में हुआ वो आपके हाथ में नहीं था. All right, Muniba said, I do experience that. Rida Kenny, every day when I talk to my husband, yes, and it leads to self-growth. I don't believe any person. Please help. All right. Regret plus diplomacy from people. It was hard but acceptable. ठीक है. अब ये लोग, people are diplomatic no matter where you go, what you do, and you have accepted that. अब क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गई कि हाँ ठीक है, लोग इस तरह के होते हैं, और मुझे क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ यू विल बी एबल टू कोप अप विद इट इन अ वेरी हेल्दी मैनर. I prioritize emotions of my loved ones more than mine sometimes. All right. Regret is depressive when we think we that thing. All right. How to overcome regrets? वही बात मैं regrets की बात करी थी कि regret जो है ना, रिग्रेट अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप पहले ये देखें कि जो रिग्रेट आ रहा है वो किस बुनियाद पे आ रहा है. ठीक है. रिग्रेट आपको इस चीज का कंट्रोल देने की कोशिश करता है कि आप अपना पास्ट चेंज कर सकते हैं, और रिग्रेट आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता. ठीक है. रिग्रेट किस चीज का रिग्रेट हो रहा है? काश मैं वो बात उससे ना शेयर करती. आई रिग्रेट दैट थिंग. अच्छा, लेकिन अब तो मैंने शेयर कर दिया. अब व्हाट्स नेक्स्ट? Ask these questions to yourself. What's next? अब मैंने क्या करना है, उससे मैंने सीखना है, और नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग अगेन. रिग्रेट कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ग्रो नहीं करने देगा. मैम आइए देखो. By keeping myself first, I'm currently trying to accept a selfish label because people think all I think of is myself when I do something in my favor over theirs. ठीक है. If you are willing to accept this thing कि मेरे लिए अगर मैंने अपने आप को खुद रखना है, that's my priority. लोग मुझे selfish कहें या जो मर्जी कहें, but I am accepting that thing. This is self acceptance. There was a time I failed in many areas, yet still here we are. It's my choice to improve myself, and that's the courage everyone can have and accept things and do better next time. Very good point. Excellent, Batul. I'm clapping for you. Very good. Proud of you. All right, ma'am. Still, sometimes I can't able to accept that how that person did it with me. It's very normal. It's very natural. Sometimes you do क्वेश्चन योरसेल्फ. आप अपनी सैनिटी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था. बट देन व्हाट्स नेक्स्ट? यू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, उसने मेरे साथ ये कर दिया है, लेकिन अब मैंने क्या करना है. कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव लूप जो हम बना के बैठ जाते हैं और यही सोचते रहते हैं उसने मेरे साथ ये कैसे कर लिया. अच्छा ठीक है, अब हो गया जो उसने किया, अब आप क्या कर रहे हो मुझे पहले ये बताओ. You are doing nothing, you are just thinking about it, you are crying over it, और अब आप अपना आप खराब कर रहे हो. उसने शायद आपको 60% खराब कर दिया, तो बाकी जो 30-40% रह गया था वो आपने खुद को खराब कर दिया. We did not learn from it, we did not grow out of it. और every experience, हर जिंदगी का जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह रहे.
आप मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी रिग्रेट की बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक कि मैंने उससे सीखा क्या अब तक। रिग्रेट तो मैं कर रहा हूँ आफ्टर फॉर सो मेनी ईयर्स और सो मेनी मंथ्स, बट क्या मैंने उससे कुछ सीखा है? इस चीज के बारे में सोचें। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Stop living in your past, be in the present. When we confront the thing which belongs to regret, we can arise from ourselves from it. Exactly, that's what I'm saying. If I make mistake, I would prefer to accept and acknowledge my mistake rather than regret it. यही आपने करना है. My life phenomenon, accept everything but expect nothing. बिल्कुल सही. I think it's important for us to redefine our personal values in order to live for ourselves rather than losing ourselves. Perfect. That means we have to change ourselves. I mean, accept ourselves as who we actually are. Yes, accept yourselves, who you are, and then only then you can be a better version of yourself. ठीक है? All right, moving on to self-compassion. Self-compassion kya hai and how is it different? Is that we are so good at this with others. ठीक है? I'm going to tell you what is it. If someone is having a bad day, we are always there to comfort that person. ठीक है, लेकिन जब हमारी अपनी गलती होती है तो we become our worst critics. ठीक है, we are so good at this. How many of you agree with me कि जब हमारी अपनी बारी आती है, हम कुछ गलती करते हैं, तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे होते हैं। और जब कोई फ्रेंड कुछ के साथ बुरा होता है, तो उसके लिए तो हम ऐसे सही, हम सारे थेरेपिस्ट बन जाते हैं, सारे काउंसलर बन जाते हैं कि नहीं यार तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वी डू नॉट से दिस थिंग्स टू आवरसेल्फ। ठीक है, और यही सेल्फ कंपैशन है। टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम ह्यूमन, it's okay to feel these things. I can forgive myself. Please, all of you, repeat after me. Say to yourself, I am human. It's okay to feel these things. And I can forgive myself. Please forgive yourself for all the mistakes that you have done. Forgive yourselves for giving a chance to someone who did not uphold your expectations. I see some messages. At that time, we want someone to say those calming words to us. Or agar Zainab, if you don't have that someone to say those things to yourself, say it to yourself. That's what self-compassion is. खुद को ये बातें देखिए, your brain needs to hear these things. चाहे वो खुद से आ रही हो या वो कोई और बंदा बोल रहा हो. At least say to yourself. Ma'am, can you please repeat what to say to us? All right, I'm going to repeat one more time and I want all of you to repeat after me. I am human. It's okay to feel these things, जो भी आप feel करें. And I can forgive myself. All right? All right, let's move on to the last part, self-love. अच्छा, I would encourage जो वीडियो जरा अपनी ऑन कर सकते हैं तो जरा प्लीज ऑन कर लें, हम छोटी सी एक्सरसाइज करने लगे हैं. It would mean a lot to me if I could see some of you as well doing it, क्योंकि मैं तो करने लगी हूँ, फिर I would also want कि आप लोग भी करें. I remember once I gifted myself a flower bouquet. That's actually very sweet of you. हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि कौन आके कब हमें फ्लावर बुके देगा. नहीं किसी का इंतजार करें, खुद को पहले आप देना स्टार्ट करें. All right, turn on your cameras if you're comfortable. We're going to talk about self-love. Self-love क्या है? That you tell yourself that you deserve peace in your life. You tell yourself that you are worthy of good things. And it actually means appreciating yourself. ठीक है, एक अपने साथ, अपने माइंड के साथ, अपने हार्ट के साथ एक पॉजिटिव वार्म रिलेशनशिप बनाए. देखिए, वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड. अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया थोड़ी सी अनफेयर है, थोड़ी सी अनजस्टिस है, कभी कभार बहुत कुछ कर जाती है. तो जस्ट ट्राई कि आप अपने साथ ना अनजस्टिस करें, खुद के साथ बुरा ना करें, ना अपने बारे में बुरा सोचें. ठीक है. All right, now I want all of you to दोनों हाथ अपने ऐसे ऊपर करें. किसी का कैमरा वैसे ऑन है कि नहीं, पहले मुझे वो देख लें. All right.
All right, now I want all of you to raise your hands like this. Okay, and now put both the hands on your shoulders. Shoulders को tight से ऐसे पकड़ ले, ठीक है? Just do that. And tell yourself that I am worthy, I deserve love. मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचूंगी या सोचूंगी. I love myself. I deserve all the love and happiness, and I'm only going to think good about myself. Just do that for 5 to 10 seconds. And you are actually going to feel the dopamine releasing, the oxytocin releasing, वो एक love hormone, वो एक relaxing, वो एक calming hormone release होता हुआ आपको feel हो रहा होगा. Books and sleep is always my comfort zone. अच्छा कैसा लगा जिसने ये activity किया थोड़ा share करें please. क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है whenever I do this. Absolutely love it. All right. Aisha said, I loved it. I wanted to cry. You wanted to cry because maybe it's been a long time since someone has hugged you like this. जब आपने खुद को hug किया तो वो एक calming सी feeling हुई. I felt goosebumps saying out the phrases loudly. I feel more happy. I have tears in my eyes. I smile after doing it. I feel worthy. Let me just make a video of these. Wait. Just a minute. All right. Feeling that I'm worthy of everything. I feel more happy, relaxing, feeling better. All right. Someone has said to repeat the phrases. I just said that I love myself and I'm worthy of everything. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस काबिल हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लव और हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ अपनी ज़िंदगी में. I always give myself this butterfly hug on both good and bad days to get going. It's the best. Trust me, this is the best. ये ऐसी exercise है जो आप like you can just do that in 5 to 10 seconds it takes, and you can just do that. ये आपको करनी चाहिए. Make this a habit of doing it. All right, now you go over there. All right. Murtaza said, I love you, Murtaza. Good to go. Proud of you. All right, now let's talk about the difference between self-worth and self-esteem, because यहाँ पे काफी लोग confused हो जाते हैं when we talk about these things. And why I want to differentiate between these two is because so that you can learn क्या आपको self-worth बढ़ाने की जरूरत है या self-esteem, और इनको और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है. All right, let's talk about self-worth. Self-worth क्या है जी? You find value in the internal world. ठीक है? It's your inner anchor. It's like your home, inner home base. जहाँ पे you believe कि you are valuable only because you exist. आपकी जो existence है ना, that's more than enough to value yourself. और इसमें और कोई दूसरी एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट नहीं ऐड ऑन होता. ठीक है? Once you love, once you learn self compassion and self acceptance, self worth बढ़ती है, क्योंकि ये एक internal belief है, एक internal choice है that keeps you stable in the situation जहाँ पे आप थोड़ा up and down हो सकते हैं. ठीक है? It is linked to your emotional stability. जैसे मैंने कहा, it helps you to stay in control. It reflects one's view of the true self. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक्चुअली में अपने बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है?
और यही जो सेल्फ वर्थ है ना, दैट इज ऑल व्हाट इट इज अबाउट, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ वर्थ कहती है कि आई मैटर नो मैटर व्हाट। डू यू अंडरस्टैंड? आई मैटर नो मैटर व्हाट, दिस इज व्हाट सेल्फ वर्थ इज ऑल अबाउट। अब नो मैटर व्हाट से क्या मुराद है? एग्जाम्स में पास नहीं हुए, डजेंट मैटर। फ्रेंडशिप टूट गई, डजेंट मैटर। ब्रेकअप हो गया, डजेंट मैटर। कजन से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं हो रहा, ठीक है। Ma'am, can you please repeat that phrase which you already said? रिपीट विच पार्ट, सॉरी मुनीबा? Ma'am, I matter the next part of it. ओके, आई मैटर नो मैटर व्हाट। मैं लिख लेती हूँ, आई मैटर। Okay, ma'am. Thank you. हाँ, ये आप लोग भी लिख लें, अपने फोन पे लिख लें, नोट्स बना लें। आई मैटर नो मैटर व्हाट, ठीक है। दिस इज व्हाट सेल्फ वर्थ इज ऑल अबाउट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या हमें कहती है जी? इट इज बेसिकली अ वैल्यू दैट अराइजेस ड्यू टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट डिफरेंट प्लेसेस पे आती है। सेल्फ वर्थ इंटरनल है, सेल्फ एस्टीम एक्सटर्नल एलिमेंट आ जाती है, ठीक है। ग्रेड्स अच्छे आ गए तो सेल्फ एस्टीम बढ़ गई, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया है, बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी मिल गई है, सेल्फ एस्टीम बढ़ गई, ठीक है। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो सेल्फ एस्टीम क्यों नीचे हो गई है, ठीक है। सेल्फ एस्टीम स्टेबल रहनी चाहिए। नहीं अगर एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे, नहीं एडमिशन मिला, नहीं इंटरव्यू मिला, द सेल्फ एस्टीम शुड स्टिल बी इंटैक्ट। और यही सीखने और सिखाने की जरूरत है। आई कम टू द पॉइंट कि इनको कैसे सीखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इट इज ऑल्सो लिंक विद मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। जितनी मोटिवेटेड आप होंगे उतना आप लाइफ में सक्सीड करेंगे, उतनी आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, कामयाब जिंदगी होगी, और उतना ही आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, और उतनी आपकी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी रहेगी, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द ईगो और फॉल्स सेल्फ। यहाँ पे किसी ने ईगो की भी कोई बात की थी। चॉइस, लव और ईगो। ऑलराइट, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो ईगो से बहुत लिंक्ड अप होती है, कि आपकी ईगो डिस्टर्ब हो जाती है, ईगो खराब हो जाती है। ईगो को मेरी किसी ने छेड़ दिया तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी खराब हो जाती है, ठीक है। इट्स बेसिकली इट्स समथिंग दैट्स नीड्स कांस्टेंट रिन्यूअल, कांस्टेंट अप्रूवल, कांस्टेंट वैलिडेशन आपको चाहिए होती है इन ऑर्डर टू नो अबाउट योर सेल्फ एस्टीम। अब आई टेल यू कि इनको किस तरह से, व्हाट आर द वेज टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम। पहले सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, फिर सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं जूम इन कर लेती हूँ जी। अब देखिए जी, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं जी? स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। हर एक की अपनी अपनी लाइफ है। दे आर ऑन देयर पाथ एंड यू आर ऑन योर पाथ। हम क्या करते हैं जी, सोशल मीडिया पे बैठे हुए स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, और मुसलसल जजमेंट पास हो रही है। उसको देखो, उसको देखो, वो क्या कर रहा है, उसके वो उसने कितने पैसे कमा लिए हैं, उसकी पिक्चर्स कितनी अच्छी हैं, वो दुनिया घूम रहा है, वो ये कर रहा है, और मैं तो यहाँ पे आराम से रूम में बैठ के टाइम जाया कर। यही से शुरुआत हो जाती है कि आपकी सेल्फ एस्टीम खराब होने लगी है, ठीक है। डोंट डू दैट। Then compliment yourself regularly. Do not wait for someone else to come and compliment you. जैसे मैंने कहा, अपने आप को शीशे में देख के खड़े होके अपने आप को शीशे में देखें। And it might feel weird initially, but tell yourself that you are amazing, you look beautiful, you look wonderful, you have done amazing job in your life, you are an amazing person. खुद को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी दूसरों के कॉम्प्लीमेंट पे आप नॉर्मल रिएक्ट करेंगे। अब क्या होता है कि स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, या थोड़े से जो कंट्रोलिंग लोग होते हैं, उनको पता है कि इसकी ना सेल्फ एस्टीम लो है,
इसको मैं लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसकी मैं इतनी तारीफ करूंगा कि वो मेरे बातों में आ जाएगी। और ऐसा होता है बिकॉज उसको पता है कि इसकी सेल्फ स्टीम लो है, इसकी किसी ने तारीफ नहीं की होगी, या ये तो खुद की तो कभी तारीफ करता ही नहीं होगा या करती नहीं होगी। तो जब मैं इसकी तारीफ करना शुरू करूंगा ना, तो ये मेरे से अट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये कमजोर लोगों की निशानियां होती हैं। इफ आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग माई सेल्फ डेली, तो जब मुझे बाहर से कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा तो मैं उसको बड़ा नॉर्मली और कैजुअली लूंगी। I'll be like, thank you for that compliment and I know alhamdulillah। बस मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया उसके पीछे पीछे भागो फिर उसका और कॉम्प्लीमेंट की मुझे जरूरत है। डोंट बी दैट पर्सन। एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली, ठीक है। आपकी जितनी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होंगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग भी होंगे, ठीक है। ट्राई टू मूव योर बॉडी बिकॉज यू केयर अबाउट योर सेल्फ, नॉट बिकॉज यू हेट इट। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम जाके अपना गुस्सा भी निकालते हैं, और इस तरह से नहीं करना। एक्सरसाइज करें बिकॉज यू लव योर सेल्फ। पीपल से जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हम तो बस गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही। Until I'm not going to give importance, attention and respect to myself, no one else is going to give that to me। Exactly। खुद को अहमियत दें, खुद की रिस्पेक्ट करें, पहले ये खुद करें फिर लोगों से कुछ उम्मीदें लगाएं। सॉरी टू से, लेकिन आजकल वो लोग जो अनलव्ड होते हैं, मैनिपुलेटिव लोग, इसी को टारगेट करते हैं और इनको ट्रैप करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। और हमने मैनिपुलेट नहीं होना। वी नो देयर पैटर्न, वी नो देयर हैबिट, ठीक है। और हम फिर भी हो जाते हैं। देखिए, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आप क्यों मैनिपुलेट हुए उसकी बातों पे? क्योंकि कभी आपने खुद को लव नहीं किया, खुद को वैल्यू नहीं किया, तो जब किसी और ने किया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात लगी। एक उसे तारीफ आपकी क्या कर दी, तो यू जस्ट थॉट कि अब जिंदगी जीना मरना इस बंदे के साथ। समझ आई? डोंट बी दैट पर्सन। ऑलराइट, सिंपली स्माइल। अच्छा, ये बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन जब मैं आपको अपना बताऊँ ना, कभी कभार मेरा ऑफ होता है, मुझे बड़ा हो रहा होता है कि यार क्या है, बस ठीक है। तो मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मेरी बड़ी अजीब सी शक्ल उस टाइम पे लग रही होती है। मैं कह रही थी यार मेरी शक्ल कितनी अजीब सी लग रही है। एंड आई वुड जस्ट लुक एट माई सेल्फ एंड आई वुड स्माइल। मैं बस अपने आप को देख के सिर्फ स्माइल करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, एक बूस्ट आता है, एक मोटिवेशन आती है कि नहीं यार बस चलो ठीक है। And it does happen. Like I actually want all of you right now to give yourself a soft smile. सिर्फ स्माइल करें बस। एंड इट विल एक आपको पुश फील होगा, एक लवली सी आपको इमोशन आएगा, ठीक है। सिर्फ स्माइल करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। ऑलराइट, फोकस ऑन योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, ठीक है। लाइफ में आई अंडरस्टैंड फेलियर और सारी चीजें, सक्सेस साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, फोकस ऑन योर अकॉम्प्लिशमेंट। जिंदगी में जो जो भी हमने अचीव किया है ना, इवन आज अगर आपने बेड से उठ के शावर लिया है, फ्रेश हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, ये भी एक अकॉम्प्लिशमेंट है। इस चीज को भी अप्रिशिएट करें। गेट द सपोर्ट यू नीड टू सक्सीड, ठीक है। मेक श्योर कि इफ यू रिक्वायर सपोर्ट, कुछ प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, किसी काउंसलर के पास जाना है, किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, गेट दैट, ठीक है। बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अचीव। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर पॉजिटिव क्वालिटीज और लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सब सारे वन बाय वन एक एक करके मुझे अपनी अपनी एक पॉजिटिव क्वालिटी बताएं। व्हाट्स योर क्वालिटी? सबकी कुछ ना कुछ तो होगी, आई एम श्योर। एंड आई सी ऑलमोस्ट 80 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। तो आई जस्ट वांट अ क्विक एक्सरसाइज करनी है, एंड यू टेल योरसेल्फ about good quality about yourself। बिल्कुल परफेक्ट। आई एम रिस्पेक्टफुल, फॉरगिविंग, मैं चीज़ों को दिल पर नहीं लेती, एम्पैथेटिक हूँ, गुड लिसनर हूँ, ठीक है, सिंसियर हूँ, पॉजिटिव थॉट्स हैं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप के इफ़ यू हैव पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, तो कीप दैट विद यू। आई एम गुड एट मेकिंग पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट सईदा। लाइटनेस है, ऑब्जर्वर हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग है, आई नेवर गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग, वेरी गुड। I ignore everyone.
Without love. All right. Active listening. I give people margin to being human. I can regulate my emotions. Emotionally intelligent. Yeah, perfect. Mashallah, we do have a lot of talented people with us. And now I want all of you to give a clap to yourself because आपने अपनी अच्छी qualities बताई हैं. The purpose behind it is that also helps you to recognize your own self. ठीक है जी. All right. If someone judges me, I don't think about that until it's really worth thinking about it. I'm not a people pleaser. I'm forgiving. All right. Perfect. Eat better. ठीक है. अपनी डाइट का ख्याल रखें. कोई पैशन है, एक्सप्लोर करें. Treat yourselves something nice. Just ठीक है. And now, what are some tips for building self-worth? ठीक है. All right. Now, self-worth, like I said, it's something that's deeper in your roots. ठीक है. और सेल्फ वर्थ ही बेसिकली आपकी सेल्फ स्टीम को मेंटेन करके रखती है. सेल्फ वर्थ इंटरनल है, बेस है आपकी, जो कि मेंटेन कैसे करते हैं और बूस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बताती हूँ. कि हमेशा सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें. जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि अगर मेरी फ्रेंड या कोई भी मेरी सिचुएशन में होता तो मैं उसके साथ कैसे डील करता है, उसको मैं क्या कहता. ठीक है. विजुअलाइज योर सेल्फ सक्सीडिंग. ठीक है. अपनी आंखें बंद करें. कोई लाइफ में चैलेंज है, किसी के एग्जाम चल रहे हैं, थीसिस चल रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई है, तो अपने आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आई हैव सक्सीडेड दैट थिंग. ठीक है. क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं. सेलिब्रेट योर विंस. ठीक है. छोटी मोटी भी हैं, बड़ी भी हैं. इवन आई वांट कि आफ्टर दिस सेशन आई वांट ऑल ऑफ यू टू सेलिब्रेट दिस थिंग कि आप लोगों ने 1 घंटा निकाल के कुछ सीखा अपने बारे में, या अपने आप को, अपने लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को टाइम दिया अपने बारे में सीखने के लिए, तो इस चीज को भी सेलिब्रेट करें. इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर. ठीक है. सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि पार्लर जा रहे हैं और हजारों खर्च कर रहे हैं. टाइम से सोएं, टाइम से उठें, डिहाइड्रेटेड ना होएं, पानी पिएं, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, लर्न टू से नो. दीज आर सम सेल्फ टिप्स फॉर सेल्फ केयर टिप्स. ठीक है. एंड सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल. ठीक है. बिकॉज जो भी आपका एनवायरनमेंट होता है, दैट बेसिकली शेप्स योर इनर वॉइस. अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो रोजाना आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रोजाना कह रहे हैं कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम कितनी गंदी लग रही हो, तुम कैसे कपड़े पहनती हो, इस तरह की अगर आपका एनवायरनमेंट है, तो वो सेल्फ वर्थ बेचारी, वो जितनी मर्जी आप कोशिश करेंगे अपने आप को बढ़ाने की, वो नीचे होती जाएगी, वो उस तरह से नहीं हो पाएगी. All right. Make sure that tell yourself कि I am enough for the way I am. ठीक है. All right. Ma'am, also clap for you. Session is too good. Thank you so much, Manur. I'll clap for myself. Thank you. Thank you. All right. Ma'am, I have a question. Ji Ikra, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, आप जो कह रही थी कि लाइक मैनिपुलेटिव लोगों से खुद को मतलब दूर करना है क्योंकि आपको पता है कि वो कर रहे हैं. लेकिन मैम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि वो हमें यूज़ कर रहे हैं अपनी बातों के ज़रिए या जिस तरह मैनिपुलेट करके, बट हम उनसे दूर नहीं रह पाते, चाहे लाइक वो फैमिली में कोई मेम्बर हो या कज़न हो या लाइक कोई भी रिलेशन वगैरह हो. तो हमें पता होता है उनकी इंटेंशन क्या है, वो किस तरह हमें यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर लाइक वर्ड्स और प्ले कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हम दूर नहीं रह सकते. तो मैम उस पर थोड़ा आप बताएं क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लड़कियां बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं, इस तरह लोगों को ट्रस्ट कर लेती हैं. तो लाइक आप थोड़ा इस चीज़ पे अगर बता दें. अच्छा इकरा, यू आर आस्किंग कि लड़के लड़कियों को आजकल ट्रेस कर रहे हैं कि लड़कियां लड़कों को कर रही हैं? What do you मैम think? बोथ के लिए ऐसा है कि मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लाइक कोई, अगर ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की का हो, बहुत से कजन्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, हमें पता होता है वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं बचा पाते. लाइक आई एम आस्किंग कि हेल्प, मतलब थोड़ा बताएं कि किस तरह हम खुद को बचा सकें इन चीज़ों जी से. बिल्कुल. अच्छा, अब यहाँ पे जिन लोगों को पता भी है कि अगला मैनिपुलेट करा और फिर भी नहीं हम वो पीछे हट पा रहे हैं, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं. आपकी जो सेल्फ वर्थ है, पहली बात तो ये, वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ चुकी है, वो तो कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता. बिकॉज एक आपको पता है कि आप मैनिपुलेट, एक अगला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप हो रहे हो. क्यों? क्योंकि वो बंदा आपको या बंदी
आपको वो फील करवा रहा है, करवा रही है जो आप खुद को नहीं करवा सक रहे हैं. You're not able to love yourself. That's why you're running after this person. Because he is giving you something जो आप खुद को नहीं दे पाते. मे बी वो इम्पोर्टेंस हो, मे बी वो वैल्यू हो, मे बी रिस्पेक्ट. तो खैर आई विल नॉट से कि इज गिविंग यू रिस्पेक्ट इफ इज मैनिपुलेटिंग यू, लेकिन कुछ तो है जो वो आपको दे रहे हैं जो आप खुद को नहीं दे पा रहे हैं. मे बी वर्क ऑन दैट. ठीक है, अपने अपनी जो वैल्यूज हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, उनको मेंटेन रखें और किसी के लिए ना, डू नॉट लेट योर गार्ड डाउन फॉर समवन लाइक दैट पर्सन. और यहाँ पे ये भी सवाल आता है, यहाँ पे ये भी बात आती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनको मोस्टली ये लगता है कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व. मैं डिजर्व ही ये नार्सिसिस्टिक बंदा या बंदी करता हूँ, या मैं डिजर्व ही एक मैनिपुलेटिव. एंड आई बिलीव इट्स ऑल्सो एन अब्यूज. ये इसको इमोशनल अब्यूज कहते हैं जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं. सो दे मोस्टली बिलीव कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व. एंड आई ट्राई टू आस्क देम कि व्हाट डू यू डिजर्व, क्या आप ये डिजर्व करते हैं? तो दे थिंक कि हाँ ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है. सी, उनकी वैल्यूज ही सेट नहीं हुई भी, उनके लिए ये चीज भी एक नॉर्मल है. बट इफ यू ब्रिंग द सेम सिचुएशन टू दैट पर्सन जिसकी बहुत अच्छी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, अपने बारे में सेल्फ कंपैशन है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, वो भागेगा. वो इस स्टोरी से भी वो भागेगा कि मुझे इस तरह की कहानियां नहीं सुनाऊंगा, कि आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन. उनकी थेरेपी जरूर होती है और उनको ये सिखाया जाता है कि पहले खुद से प्यार करें. एंड ट्रस्ट मी, आई टेल यू व्हाट, खुद से प्यार करना तो शायद ये कुछ लोगों के लिए बड़ा एक मैजिकल कॉन्सेप्ट होता है. देयर इज समथिंग, फॉर एग्जांपल यू नो, ओके, आई हैव दिस वाटर बॉटल विद मी. ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रही है ना, मेरी वाटर बॉटल है. अब आई लव दिस वाटर बॉटल. ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद है. मैं इसका ख्याल रखूंगी, मैं इसको टूटने नहीं दूंगी, मैं इसको डेली वॉश करूंगी, इसको मैं यूज करूंगी, मैं जहाँ जाती हूँ उसको मैं साथ लेके जाती हूँ, मैं इसकी वैल्यू करती हूँ, मैं इसको रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको मैं किसी और के हाथ नहीं देती, किसी को नहीं कहती कि यार कुछ टाइम के लिए तुम उसको रख लो ना. मैं ये किसी से शेयर भी नहीं करती बिकॉज आई लव माई वाटर बॉटल. ठीक है ना, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से दीज थिंग्स अबाउट माई वाटर बॉटल. बट इफ आई हैव टू से द सेम थिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, आई माइट बी रिलक्टेंट. खुद को मैं किसी के भी हवाले कर दूंगी, किसी को भी दे दूंगी, कोई भी मुझे यूज कर ले, मैनिपुलेट कर ले, आई डोंट माइंड. ठीक है, मैं अपनी वाटर बॉटल के बारे में बड़ी कंसर्न हूँ, बड़ी पोजेसिव. आई वॉन्ट यू गाइज टू फील द सेम वे व्हाट यू फील अबाउट द थिंग्स यू लव अराउंड यू. कुछ लोग अपने फोन को लेके बड़े पोजेसिव होते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते, टूटने नहीं देते, प्रोटेक्ट करके उसको रख रहे होते हैं बिकॉज यू लव दैट फोन एंड मे बी यू हैव इन्वेस्टेड सो मच इन योर फोन. बट when it comes to yourself, तब आप उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं करते. So it's all about valuing yourself and loving yourself first and then coming out of this circle. It is difficult, मुश्किल होता है, but it can be done. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Alright, think of a recent moment जहाँ पे आपने बहुत intense emotion feel किया हो. Tell me about it. Did you accept that emotion or you fought with your emotion? Take your time. Think about any recent emotion जो आपने feel किया हो. Did you accept it or did you fight with it? Because we have learned about self-esteem, self-worth, सारी चीजें, but now let's get back to you. जी. एंगर फील किया था एंड एक्सेप्ट किया था. ठीक है, एक्सेप्टेड इट, स्टिल फाइटिंग विद इट. ऑलराइट मैम, आई लेट गो ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आई हैड बिकॉज ऑफ मी, because of my self-respect finally, and I accepted it. Proud of you. When people reject me and accept that emotion like sadness, anger, hopelessness, people say, cry at side and let it be. Go feel myself relaxing after releasing of emotions. I just let it go because if I think that emotion again, I guess I will lose myself again. So I decide to let go and decide to work on myself. I fought it, then trying to accept, fighting with it.
accepted, double faced, or conflicts of families because I can't fight. All right. All right. Thank you. Thank you so much for sharing your emotions, your stories, and if whether you accepted or fought with it. All right. Now the main idea behind this activity is that when we fight these emotions, we create more stress. Every emotion that we fight, it leads to more negative stress, more negative emotions. ठीक है? Fighting the emotion will make the emotion more stronger. Are you getting my point? The more you fight your emotion, the more stronger it will get. The more you accept your emotions, the more it will fade away. As you can see the picture over here as well. बड़ी ये मुझे अच्छी लगी. एक feeling आई, आपने इसको fight किया और वो persist होती गई. And same way, a feeling arises and you accepted it and it faded away. And trust me, it does. Accept का मतलब ये नहीं है कि you have to like the feeling. No, acceptance does not mean that you have to like the feeling. It actually means to allow that emotion to come without any sort of judgment or biasness. ठीक है? And acceptance is the first step towards emotional resilience as well. जब हम अपने emotions को accept करते हैं, instead of fighting with them, instead of fixing them, we build strength. और जब हमारे पास strength आ जाती है to face any kind of emotion, we we develop a concept that's called emotional resilience. All right, let's see some messages. To losing my best friend और अभी भी वापस खुद नहीं जाना चाह रही क्योंकि शायद मेरी वो इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उसके लिए. एक्सेप्ट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, खुद को स्ट्रेस एंजाइटी से निकालने की कोशिश कर रही हूँ. Aruba, I am with you in this. I hope that Allah Ta'ala gave you strength to cope up with it because I can completely understand how does it feel. Aruba, took me 3 years. Don't worry, it will be okay. You can do it. Don't go to those who don't give you importance. Thank you, Ansa. I love it how the participants are talking to each other and they are, being there with each other. And that's what safe space is all about. It's all about helping each other out, supporting each other. ठीक है? Wonderful. I'm proud of all of you. When I'm fighting with emotions, one question turns into hundreds of questions and more difficult to overcome. Exactly. Yes, Manu. Thank you for this pointing this out. जब हम किसी एक इमोशन को फाइट करते हैं तो एक सवाल हजारों सवालों में बदल जाता है और वो हजार सवाल को कोप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Alright, let's move to why is it hard to accept emotions. अच्छा, ये भी बड़ा important part है कि हम emotions को इससे भी accept नहीं कर पाते because we see them as a sign of weakness. ठीक है? Emotions are not at all weakness. They are, they are very powerful and we need to accept our emotions. ठीक है? They are part of us. We are made up of emotions. ठीक है? Emotions के बगैर हम कुछ भी नहीं है. जैसे अंसा ने कहा, I feel numb. Ansa, would you like to say how does it feel without feeling any emotions? ठीक है? It's okay, you don't have to. I'm just saying it. Being numb or being not having any emotions is not at all a good thing. ठीक है? सोसाइटी को लगता है कि वल्नरेबल हो जाते हैं आजकल लड़के बेचारे. अब तो खैर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है. इवन बॉयज डू क्राई एंड दैट्स ओके. बट पहले यही होता था कि मर्द या लड़के नहीं रोते थे बिकॉज लड़कियां रोती हैं, वो कमज़ोर कमज़ोर बनने की निशानी. आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप रो रहे हो ना किसी के सामने तो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदा कोई नहीं. ठीक है? रोना मेरे ख्याल से एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है दैट यू आर एबल टू एक्सेप्ट योर इमोशंस एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस इट आउट. ऑलराइट. अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टूडेंट्स या वुमेन की बात करें तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है टू स्टे स्ट्रॉन्ग, टू कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट, इमोशन जो है वो मैसेजेस होते हैं, थ्रेट्स नहीं होते. ठीक है? हमेशा अपने इमोशंस को समझें, उनको पढ़ें. ठीक है? वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको. दे आर टेलिंग यू समथिंग. डोंट इग्नोर देम. ऑलराइट, we are running out of time. Let me just
ये सारी बातें हो चुकी हैं. You have to welcome the emotion. You have to observe your emotions. Try to name your emotions. I'm feeling angry. I'm feeling frustrated. I'm feeling stressed. Try to befriend the emotion. उससे लड़े नहीं, उसको accept करें. Identify the need. Like I said, emotions are telling you something. If you're feeling sad, you might need a hug. If you're feeling stressed, maybe it's time to relax a bit. ठीक है. If you're feeling overwhelmed, maybe it's time to plan something. ठीक है. अपने इमोशंस को पढ़ें, सीखें, और दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. एंड क्रिएट एक्शनेबल स्टेप्स. ठीक है. क्या स्टेप्स लेने चाहिए मुझे इन ऑर्डर टू कोप अप विद द इमोशन. वेज टू वैलिडेट योर सेल्फ. ये सारी वही बातें हैं. ये सारे वो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड की. ये सारी वो स्टेटमेंट हैं जो आप अपने बारे में कह सकते हैं. It's okay to cry. I am worthy. Good job. I trust myself. I like myself. ठीक है. All right, let's move on from self criticism to self compassion. ठीक है. Self criticism, जब आप ना आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, it leads to stress, it leads to shame. और जब हम सेल्फ कंपैशन हो रहे होते हैं, वो आपकी सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं. यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील सेफ इन योर ओन इन्वायरमेंट. ठीक है. एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस सेशन एज वेल, कि अगर आपके अंदर कोई भी सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली चीज है, तो लेट्स कन्वर्ट देम टू सेल्फ कंपैशन. ऑलराइट, लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मैसेजेस. मैम, ये भी बहुत मैटर करता है कि किसको समझ रहे हैं आप. बिल्कुल. Ma'am, last time when I broke up with my best friend, I cried for 6 months and I apologized again and again. It makes me cost my self-respect, but this time I didn't even feel sadness. And I don't remember from last year that if I have cried, maybe it's been a year. The numb feeling is that even if now someone tells me something hurtful, I can't feel something, and I disappeared for a month from online platforms. That's how I felt numb. And that's not a good feeling. That's not a good thing at all. ठीक है. Being numb, being not able to feel anything, even pain is something that makes you keep going. We need pain. Pain is a reminder, it's a reality check. It tells us where we are, who we are. So we need to be handful of emotions हमारे होते हैं, उनको हमने फील करना, उनको हमने एक्सपीरियंस करना. All right. लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ क्रिटिसिज्म को किस तरह से सेल्फ कंपैशन में बदला जा सकता है. ठीक है. इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, टेलिंग योर सेल्फ के आई मेस्ड अप अगेन, आई एम सच अ फेलियर, हम उनको हमेशा ये कह सकते हैं कि फेलियर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ. ठीक है. I should have achieved more by now. Life is not a race. I will go at my own pace. Oh, that rhymes also. Life is not a race. It will go at my own pace. ठीक है. ये तो आप लाइफ का मोटो बना सकते हैं. Life is not a race. I will go at my own pace. ठीक है. I can't believe I made another mistake. It's okay. The mistakes do not define you who you are. ये वो statements हैं जो आप अपने आप को कह सकते हैं whenever you notice yourself that you are criticizing yourself. ठीक है. Because जो self criticism है ना, वो situation को और worse कर लेता है. वो stress बढ़ाता है, anxiety बढ़ाता है, वो हमारी strength को weak करने की कोशिश करता है. ठीक है. So we always have to encourage ourselves and tell good things to ourselves. All right, let's see what do we have next. All right, let's do a very quick small reflection activity. I think ये मेरी last slide है. Let me see. चलो, थोड़ी सी रह गई. All right, so there's a quick exercise that I want to do it with you guys right now. ठीक है. 2 situations है, मैं आपको word by word बताऊंगी, and then you have to tell me the compassion thought of this. The situation 1 is you wanted to take a day for self-care, but your family criticized you for being lazy and for not doing household chores, especially for women. ठीक है. पहला thought जो आपको आएगा, जो self criticism thought होगा, they are right. I should always put family first. I'm selfish for wanting time for myself. इसको compassionate thought में कैसे convert करेंगे? Anyone would like to share a compassion thought of this? Rukhsa Ibadat said, I need my me time. All right. Who else would like to share something?
Anyone else? Any other self-compassion thought? It's okay to take one day off and be lazy. I will do my course tomorrow. I need to rest to be fully charged. बिल्कुल ठीक. Good one. I like this one. I need my game time. All right, boys. I see you. Sabah said I would not bother. All right. It's okay to take a day off for myself, even if people don't understand. Just chill. Good one. If I am my 100%, I will be able to give you my 100%. Very good. I need to cut myself some slack and should think about myself too. It's okay to take time and rest, and I will be productive next day. Because let's see what the thought is. Taking care of myself is important. Resting does not make me selfish. It makes me stronger for myself, for me, my family and myself. वही बात है. अगर मैं रेस्ट करूंगा, अगर मैं if I feel better today, I will be able to give you a better tomorrow. Perfect. It's okay to feel pain. That will go one day. ठीक है. All right. The second situation is your friends got highest marks and you saw them posting their top grades on social media while you barely passed an exam. The original thought, self criticism, would be I'm not smart like them. I will never achieve anything. I'm such a failure in my life. क्या compassionate thought होगा इसका? I can do better next time. All right. What else? Things happen. Let it go. ठीक है. Life is not a race. I will achieve good things on my own pace. बिल्कुल सही. Good one, Aisha. I like it. I will also, inshallah, next time I will process, I will congratulate them. If someone can do it, I can do. I know I can do better. बिल्कुल सही. The compassionate thought would be everyone's journey is different. Passing is still progress and I can improve with practice. ठीक है? I am my own competition. I will learn and grow. I will celebrate my friend's success. So these are some of ways that you can tell yourself. और ये सिर्फ इस घंटे के सेशन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है कि जब भी आप नोट करें कि यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, तो आपने अपने आप को लेके कंपैशनेट होना है और अपने आप को अच्छी बातें करनी है. ऑल राइट. इमोशनल इंटेलिजेंस की हमने बात कर ली है. इट्स द एबिलिटी टू, ठीक है. व्हाट इज वन थिंग दैट हेल्प्स यू बाउंस बैक व्हेन लाइफ गेट्स टफ? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देती हूँ. सेल्फ resilience क्या है? It's ability to be emotionally resilient as it helps you to build healthy coping strategies and keep the balance in stressful situations to become an expert in your own emotions. ठीक है. Simple words में अगर बताना चाहूँ तो it's not something that you're born with. It's something that you practice and you get better over time. ठीक है. ये एक वही वाली बात हो गई कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उस एक्सेप्टेंस की वजह से आपको स्ट्रेंथ आती है टू बी एबल टू कोप अप विद एनीथिंग इन आवर लाइफ. इट इमोशनल रेजिलियंस इज व्हाट हेल्प्स यू टू बाउंस बैक व्हेन लाइफ गेट टफ्स. कभी कभार जिंदगी में कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं वेयर यू डू फील मेंटली अपसेट, स्ट्रेस, एंजाइटी. ठीक है, ये ऑल दीज इमोशंस आर रियल. तो इमोशनल रेजिलियंस जो है ना वो आपको सिखाती है कि किस तरह से हम वापस आ सकते हैं to life. You tell yourself, I can do better next time. Exam अच्छे नहीं हुआ तो you can always come up with a better plan next time. ठीक है. Simply give yourself a break. कुछ stressful moment आगे किसी से share कर लें, but accept your emotions. इसे भागे ना. Give yourself permission to feel whatever you are feeling. ठीक है, ये emotional resilience आपको सिखाती है. And then I can ask you guys कि आपकी ज़िंदगी में क्या आप लोगों क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो यूज़ की है that has helped you to bounce back when life got tough for you? Looking back to where I was then versus now. Prayers. Always, always. बिल्कुल सही. I agree.
Gratefulness for what I have, crying to Allah Ta'ala, gratitude in everything. Bilkul say, praying, patience, sabr, shukr, believing on myself, giving time to myself, tahajjud, music, cleaning and organizing my room. Bilkul say, perfect. Thank you so much everyone for giving honest feedback. यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं when life gets tough, और ये चीज़ें आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप इमोशंस को एक्सेप्ट करोगे। जब आप इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उनसे भाग रहे हो, उनसे लड़ रहे हो, तो फिर ये सारी चीजें भी नहीं आप कर पाओगे। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू एक्सेप्ट योर इमोशंस एंड देन यू डू समथिंग अबाउट इट इन योर लाइफ। ऑल राइट, ये सारी वही चीजें आ गई। हाउ कैन वी बिल्ड रेजिलियंस? वी कैन डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, वी कैन फाइंड मीनिंग, वी कैन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जो चीजें नहीं करनी है, पास के बारे में ना सोचें, अपने आप को आइसोलेट मत करें, टॉक टू समवन, एक हेल्दी एक पॉजिटिव लाइफ जिए, डू नॉट निग्लेक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ऑल राइट, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हो लेटर ऑन आफ्टर लाइक सेशन तो खत्म हो गया, बट आई एक्चुअली वांट कि मैं जाने से पहले आप लोगों को एक काम देकर जाऊँ जो आप लोगों ने अपने लिए करना है। ठीक है, इट्स नॉट फॉर मी, यू कैन ऑल्सो शेयर इट इन द ग्रुप इफ यू वांट, टोटली अप टू यू। आज के बाद कभी भी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन इस तरह की होती है जहाँ पे आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उनको आपने वैलिडेट करना है। ठीक है, राइट डाउन 3 नेगेटिव इमोशंस जो आप इसके बाद फील करेंगे, नॉट रिसेंटली बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जो जो चीज़ें रिसेंटली हुई है। आफ्टर दिस डे, इफ यू एवर एक्सपीरियंस एनी नेगेटिव इमोशन इन योर लाइफ, राइट इट डाउन एंड देन ट्राई टू वैलिडेट देम, वैलिडेट योर इमोशंस। अगर आपको ये थॉट आ रही है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस फ्रेंडशिप या अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो उसको आपने सेल्फ कंपैशनेट के थ्रू वैलिडेट करना है। एंड देन यू कैन ऑल्सो डू अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, 3-3-3 टेक्निक फॉर कामिंग द माइंड, छोटी सी ऐसी एक्सरसाइज है, आप लोग मेरे साथ कर ले एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू काउंट, ऑल ऑफ यू सिट रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाएं, बैक अपनी स्ट्रेट कर लें बिल्कुल। आई एम गोइंग टू काउंट टिल 3 एंड यू हैव टू inhale the breath, and then I'm going to count till 3. You have to hold it for 3 seconds and then you have to exhale it out. All right, on count of 3, 1, 2, 3, inhale. All right, hold it, 1, 2, 3, exhale in 3 seconds, 1, 2, 3, repeat again. I'm going to count till 3 and then you have to inhale. 1, inhale करें, 2, 3 and hold it. 3 seconds के लिए hold करें. 1, 2, 3. Now exhale in 3 seconds. 1, 2, 3. All right. This is a very quick small breathing exercise that actually helps you to relax yourself and to be able to calm your nervous system and also be able to feel the emotions that you're feeling around you. All right. Thank you so much. This is the end of our today's talk. Thank you for being part of the safe space, and tell yourself that you are thankful for your strong sense of self. Tell yourself you love yourself and you believe in yourself, and जो बातें आज हमने सीखी हैं, promise yourself you will actually follow that in your coming life as well. Thank you so much, everyone. Thank you, everyone. It was a wonderful session. I absolutely enjoyed and totally loved it. Loved the entire छोटी सी 1 घंटे की हमारी जर्नी थी, लेकिन it was very fruitful. Thank you, everyone, for your warm words. Thank you so much. This therapy was what I needed in what I was facing right now. Thank you, Alhamdulillah, for this session. Thank you, Fatma. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Ali. Thank you, Batul, for your calm, lovely words. All right. Kashmala, over to you. Thank you so much, Afra. It was really, really a wonderful session, as always, like you do. And the activities, everything was so helpful. I am so glad to be a part of this, and thank you so much for your effort. Love the session overall.
It was so Thank you so wholesome. much. Thank you. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.